हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी डिस्कस सम मोर numericals based on series and parallel combination of resistors। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल ये है, this is a resistor of resistance 5 ohm, this is a resistor of resistance 10 ohm, this resistor is of 10 ohm and this resistor is of 5 ohm. A key is connected here as shown. This is switch S. Now two parts आते हैं. First part, when S is open, then find RAB. Second part आता है when S is closed, then also find RAB. RAB means equivalent resistance between the points A and B. देखो बच्चों, पहला डायग्राम बनेगा हमारे पास कि जब स्विच S ओपन है, then we can say that this is the first diagram. From here 5 ohm and 10 ohm both are in series and 10 ohm and 5 ohm both are also in series. Therefore we get the equivalent diagram. बच्चों, ये 5 ohm ये 10 ohm बोलो जब सीरीज में है, then we can say that the resistance becomes 15 ohm and this is 10 ohm, this is 5 ohm, both are in series. Therefore equivalent resistance of these two resistors also becomes 15 ohm. Now 15 ohm and 15 ohm both are connected in parallel. Therefore Rp is equal to 15 into 15 upon 15 plus 15. बच्चों आपने पढ़ा एक R1 दूसरा रजिस्टर R2. When both are connected in parallel, then equivalent resistance becomes R1 R2 upon R1 plus R2. बच्चों हम कह सकते हैं Rp is equal to 15 into 15 upon 15 plus 15, that is 15 into 15 upon 30, or we can say 15 upon 2 ohm. Therefore equivalent resistance between point A and B is 15 upon 2 ohm. This is the answer of first part. Now second part, when switch S is closed, this switch is closed, this switch is closed. जब ये स्विच हमारे पास क्लोज होगा, then if we consider at this point the potential is X, then at this point the potential will also be X. These 2 points are connected to the same potential and these 2 points are also connected to the same potential. Therefore we can say that 5 and 10 ohm both are connected in parallel. और बच्चों ये दोनों भी हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे. देन वी कैन रीड द इक्विवेलेंट डायग्राम एज. देखो बच्चों, ये 5 ओम, ये भी हमारे पास 10 ओम. these becomes in parallel and 10 ohm and
5 ओहम, ये भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगी। एंड 5 10 10 5 बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, therefore 5 into 10 upon 5 plus 10, 5 10 का इक्विवेलेंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, बच्चों बोलो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 50 अपॉन 15, और वी कैन से दैट 10 अपॉन 3 ओम। इन दोनों का भी हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 10 अपॉन 3 ओहम के इक्वल होगा। नाउ दिस इज पॉइंट ए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ वो बच्चों हमारे पास हुआ 10 अपॉन 3 ओहम, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स इज आल्सो इक्वल टू 10 अपॉन 3 ओहम, both are in series, therefore net resistance RAB is equal to 10 upon 3 ohm plus 10 upon 3 ohm, and we can say that this becomes equal to 20 upon 3 ohm when switch S is closed. Then equivalent resistance between A and B becomes 20 upon 3 ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसा ही करेंगे। इसमें हम डिस्कस करते हैं, दिस इज ए बैटरी ऑफ 14 वोल्ट एंड इट इज कनेक्टेड टू एन एमीटर। बच्चों एमीटर है वो यूज किया जाता है टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिस इज आल्सो ए रजिस्टर and this is also a resistor. Now this is connected to this point. This is connected at this point and this is a resistor of resistance 10 ohm. ये रजिस्टर बच्चों हमारे पास 5 ओम का दे रखा है, ये हमारे पास 7 ओम के बराबर है। दिस इज 3 ओम एंड दिस रजिस्टर इज ऑफ 1 ओम। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर E, और वी कैन से रीडिंग ऑफ एमीटर कैलकुलेट करनी है। रीडिंग ऑफ एमीटर वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर 3 + 7 equals 10 ohm. We can read this resistor as 10 ohm. Now ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल x ले लूँ तो बच्चों यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा आपके पास, x के बराबर होगा। और अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों y ले लेता हूँ तो बोलो बच्चों यहाँ पोटेंशियल y, इस पॉइंट पे पोटेंशियल y और इस पॉइंट पे पोटेंशियल y। अगर हम इसको देखते हैं तो हम कहेंगे कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, इसके एंड्स के क्रॉस, यहाँ पे पोटेंशियल y, यहाँ पे पोटेंशियल x, इस रजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस यहाँ पोटेंशियल x और दूसरे एंड के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू y है। और इस रजिस्टर के लिए इस एंड पे पोटेंशियल y एंड एट दिस एंड पोटेंशियल इज x। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि तीनों रजिस्टर्स के जो एंड्स हैं वो हमारे पास सेम पोटेंशियल पे है, और जब पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर
हमारे पास सेम होगा, then we can say that the resistors are in parallel, therefore equivalent डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास 14 वोल्ट के बराबर दिया है, ये रजिस्टर बताया है वो 1 ओम के बराबर बताया है। बच्चों मैं यहाँ पे इसको ऐसे मान लूँ कि भाई ये तो वाई था इस साइड में, दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल था वो एक्स था, और बोलो वाई और एक्स के बीच में हमारे पास 10 ओम कनेक्ट है या नहीं। आगे देखो, ये पोटेंशियल वाई और ये एक्स, वाई और एक्स के बीच में अगेन कितने ओम कनेक्ट हैं, 5 ओम। दिस रजिस्टर इज आल्सो इक्वल टू 5 ओम, एंड इस पॉइंट पे वाई और इस पॉइंट पे कितना बताया एक्स, देन एक्स और वाई रजिस्टर है, उनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 10 ओम के बराबर है। बच्चों यहाँ तक क्लियर? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे चलूं, आगे बोलो, 10 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। बोलो बच्चों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देयरफॉर 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 10 एलसीएम ले लिया बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 4 अपॉन 10, 2 2 जा 2 5 जा, आर पी इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 ओम। नाउ बच्चों इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी आया, तो इन तीनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं आरपी से, और जब इसको आप आरपी से रिप्लेस करोगे, नाउ दिस रजिस्टर इज ऑफ 1 ओम एंड दिस रजिस्टर इज ऑफ 5/2 ओम। नाउ 5 अपॉन 2 ओम एंड 1 ओम, बोलो बच्चों कैसे कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देयरफॉर 1 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स 7 अपॉन 2 ओम। नाउ बच्चों ये बैटरी 14 ओम की, और जो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ वो हमारे पास बच्चों कितना हुआ, 7 अपॉन 2 ओम। अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है नेट करंट आई की, देन वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, 7 2 जा, और वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 4 एम्पियर। और बच्चों यहीं पे एमीटर कनेक्ट कर रखा है हमने, यही है एमीटर। इस एमीटर में से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा बच्चों, 4 एम्पियर के बराबर होगा। अगर बच्चों इसमें इस पॉइंट पे एमीटर कनेक्ट ना करके अगर ये इस पॉइंट पे एमीटर को कनेक्ट कर देता, तो बच्चों आप निकाल सकते थे कि करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। देखो इसी को मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस करता हूं। इस पॉइंट पे एमीटर कनेक्ट किया, इस पॉइंट पे एमीटर कनेक्ट किया है, दैट इज हम कहेंगे कि हमने जो एमीटर कनेक्ट किया है वो किसके अक्रॉस किया है, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। देन हमें कैलकुलेट करना है कि करंट फ्लोइंग की वैल्यू है वो 10 ओम में से कैलकुलेट करनी है। बच्चों अपने को कैलकुलेट पहले तो यही करना था कि भाई टोटल करंट फ्लोइंग है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 4 एम्पियर के बराबर होगा। देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास करंट आया 4 एम्पियर, और बोलो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा या नहीं। इधर करंट कितना मान लिया मैंने, I1, इधर करंट बच्चों कितना मानना, I2, और इधर करंट बच्चों कितना मानना हमने, I3। और जब हम कहेंगे कि इन तीनों में से करंट की वैल्यू है वो फ्लो कर रही है I1, I2 एंड I3, और वी कैन से दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 4। कंपोनेंट डिविडेंड मेथड लगाएं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू
1/R1 रेशो 1/R2 और बच्चों R2 की वैल्यू कितनी है 5 रेशो 1/R3 और R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों 10 ओम। आगे बताओ, आगे हमने बताया था कि राइट साइड में एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसी से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम बच्चों 10 आया 10/10 रेशो 10/5 रेशो 10/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ और 5 टू जा 10, दैट इज I1 रेशो I2 रेशो I3 इक्वल्स 1:2:1। नाउ बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को I1 की। I1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू नेट करंट। और बच्चों नेट करंट की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एमीटर विल बी ऑफ 1 एम्पियर। इधर बच्चों 1 एम्पियर और जब ये 10 ओम का रजिस्टर है तो इसमें से कितना जाएगा 1 एम्पियर। बोलो बच्चों यहाँ से कितना जाएगा 2 एम्पियर। किसी भी आर्म के अंदर अगर एमीटर कनेक्ट है और किसी भी आर्म में से अगर अपने को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देन वी कैन कैलकुलेट इजीली। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, इसमें से करंट निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा इस क्वेश्चन में बच्चों कि ये x मानना था, ये भी कितना होगा आपके पास x पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट पे मैंने y माना तो इस पॉइंट पे भी y, इस पॉइंट पे भी y और बच्चों इस पॉइंट पे भी y। बच्चों इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो x y, इसके अक्रॉस x y और इसके अक्रॉस भी x y, दैट इज हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। नाउ जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर है वो सेम होगा तब हम क्या कहेंगे कि ऑल द रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तीनों रजिस्टर बच्चों पैरेलल में हो गए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद 5/2 एंड 1 दोनों सीरीज में थे। आई की वैल्यू निकाली हमने। आई की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों हमने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करी बच्चों कि इस 10 ओम रजिस्टर में से करंट फ्लोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ हम इस डायग्राम पे टोटल करंट फ्लोइंग कितना था 4 एम्पियर। बच्चों इधर I1 इन दिस साइड I2 एंड इन दिस साइड I3, देयरफॉर I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4 एंड कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया। इनका रेशियो निकाला बच्चों I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/10 रेशियो 1/5 रेशियो 1/10। नाउ 10/10 1, 10/5 2, 10/10 1। I1 is equal to 1/1 plus 2 plus 1 multiply by total current. Similarly, we can calculate I2 and I3। और बच्चों अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो जब दो रजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस सेम है and both are connected in parallel, then the current will also be flowing same through them, that is from here 1 ampere and from here 1 ampere। इसमें से कितना बचा बच्चों टोटल 4 था, 1 इधर गया 1 इधर गया। बच्चों इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करेगा। नाउ in this question we calculate the current flowing through each register। और बच्चों आपसे पूछ ले कि 1 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा तो 1 ओम में से टोटल करंट कितना फ्लो करेगा आपके पास
4 एम्पियर के बराबर फ्लो करेगा। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि द रीडिंग ऑफ एन आइडियल एमिटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट बताया है आई व्हेन की K1 is closed and K2 is open। सेकेंड पार्ट बताया बच्चों I/2 when keys K1 and K2 both are closed, then find the value of x in terms of R and S। बच्चों देखो क्या बताया इसने, कोई एक आइडियल एमीटर है, उसमें से करंट फ्लो करता है I1 when key K1 is closed and key K2 is open, and I/2 when key K1 and K2 both are closed, then we have to find out the value of x in terms of R and S। बच्चों ये सर्किट डायग्राम दिया है, ये हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर बताया है, यहाँ पे एक एमीटर बताया है, एंड दिस इज आल्सो ए रजिस्टर। नाउ दिस इज ए रजिस्टर एंड दिस इज एनी की एंड दिस की इज K2। ये एक बैटरी बताई है, और बच्चों ये हमारे पास इसने एक की बताई है, और जो की है वो K1 बताई है। दिस रजिस्टर इज R, दिस इज S एंड दिस इज X। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। बच्चों जब की K1 क्लोज है तो ये की तो इसने बताया क्लोज है, एंड व्हेन की K1 इज क्लोज्ड देन करंट विल बी फ्लोइंग। और बच्चों की K2 क्या बताई इसने, ओपन। तो बच्चों क्या इस आर्म में से एस रजिस्टर में से क्या कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो करंट फ्लोइंग किसके बराबर होगा, इसमें से 0 के बराबर होगा। देन वी कैन रीराइट एज दिस इज रजिस्टर R, दिस इज एन एमीटर एंड दिस इज एनी रजिस्टर X एंड दिस इज ए बैटरी, एंड ये की K1 है एंड की K1 इज क्लोज्ड। और बच्चों यहां से आई करंट जाएगा, जब यहां से आई करंट जाएगा तो बच्चों एमीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा, आई। और क्वेश्चन ने पहले पार्ट में क्या बताया है कि आई करंट विल बी फ्लोइंग, देन R एंड X बच्चों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देन वी कैन से दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस X। वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू V अपॉन R प्लस X, एंड दिस इज इक्वेशन 1। दूसरे पार्ट में क्या कहा है बच्चों, इसने बताया है कि एमीटर में से करंट फ्लो करेगा वो I/2 के बराबर होगा व्हेन की K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड। जब दोनों हमारे पास कीज क्लोज होंगी देन वी कैन रीराइट एज। देखो बच्चों ये डायग्राम बनेगा, ये हमारे पास की है, ये K1 की, इसको क्लोज किया है, ये कोई रजिस्टर बताया बच्चों R, ये हमारे पास कोई एक एमीटर बताया, दिस इज रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस X एंड दिस इज एनी रजिस्टर S and this key is also closed and this key is K2।
बच्चों यहाँ से करंट जाएगा और मैंने मान लिया कि यहाँ से करंट कितना गया I1। बोलो बच्चों इधर करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास करंट है वो डिवाइड हुआ है। इधर मैंने माना बच्चों करंट I2 और इसमें करंट बच्चों कितना मान लिया I3। और बोलो बच्चों इसकी वैल्यू दे रखी है या नहीं, और कितनी दे रखी है I/2। पहले इसका करंट I1 कैलकुलेट करते हैं और फिर हम पोटेंशियल डिविडेंड रूल लगाएंगे और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, S एंड X पैरेलल, देन RP इज इक्वल टू SX अपॉन S प्लस X। बोलो बच्चों इनका एक रजिस्टर बना और जो एक रजिस्टर बना वो हमारे पास आया RP। दिस रजिस्टर इज R एंड दिस रजिस्टर इज RP एंड दिस इज ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V और ये की क्लोज है। नाउ बच्चों देखो R एंड RP both are in series, therefore इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R प्लस RP। और बच्चों यहाँ से जो करंट I1 आया उसकी वैल्यू क्या कह सकते हो, I1 इज इक्वल टू V अपॉन RS, V अपॉन R प्लस RP। बोलो बच्चों I1 की वैल्यू यही होगी एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस SX अपॉन S प्लस X। I1 की वैल्यू है V अपॉन RS। RS बच्चों किसके बराबर था, R प्लस RP। और बच्चों RP की वैल्यू कितनी थी, SX अपॉन S प्लस X। बच्चों I1 की वैल्यू आई, अपन को कैलकुलेट करनी है I3 की वैल्यू। I3 बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, I3 इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस X इंटू बच्चों क्या लिख सकता हूं, टोटल करंट I1 और I3 की वैल्यू आई हमारे पास S अपॉन S प्लस X इंटू V अपॉन R प्लस SX अपॉन S प्लस X। और बच्चों इसको मैं लिखता हूं I3 इज इक्वल टू SV अपॉन S प्लस X इंटू S प्लस X इज एलसीएम R इंटू S प्लस X प्लस SX। बोलो बच्चों ये लिख सकते हैं SX से XX S प्लस X कैंसिल, I3 इज इक्वल टू SV अपॉन R इंटू S प्लस X प्लस SX। बच्चों I3 की वैल्यू यही होगी, एक बार दोबारा देखो इसको। I3 की वैल्यू के लिए I1 हमने कैलकुलेट किया, I3 कैलकुलेट करना है। I3 इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस X इंटू टोटल करंट। टोटल करंट की वैल्यू V अपॉन R प्लस SX अपॉन S प्लस X। S प्लस X बच्चों एलसीएम लिया, S प्लस X R इंटू S प्लस X प्लस SX। S प्लस X से X प्लस X कैंसिल आउट, I3 इक्वल्स टू दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, when key K1 and K2 both are closed, then current flowing through ammeter is I/2, that is I3 is equal to I/2. Now I upon 2 equals to SV upon R into S plus X plus SX. This is equation number 2 फ्रॉम 1 and 2। बच्चों I की वैल्यू यहाँ पुट कर ले तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू V अपॉन R प्लस X इज इक्वल टू SV अपॉन R इंटू S प्लस X
प्लस एस एक्स, वी से वी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2s इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू आर एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों। देखो ये आया हमारे पास 2s आर प्लस 2s एक्स इज इक्वल टू आर एस प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स। एक आर एस से एक आर एस कैंसिल आउट, इस एक एस एक्स से एक एस एक्स कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड में हमारे पास आया एस आर प्लस एस एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। और बच्चों अपने को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एक्स की। इसको इधर ले आओ, इसको जब मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, एस आर इज इक्वल टू आर एक्स माइनस एस एक्स और एक्स इंटू आर माइनस एस इज इक्वल टू एस आर। और बच्चों एक्स की वैल्यू आई वो आर एस अपॉन आर माइनस एस। और हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एस एंड आर। एस एंड आर की टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। पहले तो क्या बताया था, K2 ओपन थी और फिर क्या बताया इसने, K2 एंड K1 बोथ आर क्लोज्ड। करंट फ्लो कर रहा था, वो किससे फ्लो कर रहा था, आपके पास एमीटर से करंट फ्लो कर रहा था। पहले एक इक्वेशन सोल्व करी, फिर इसको सोल्व किया, कंपोनेंट डिविडेंड रूल का यूज किया। I3 की वैल्यू थी I अपॉन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 एंड वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। बच्चों इसमें कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछो। इसमें एक बार देखो इसको।